Hello everyone. Today we will be discussing about gastroesophageal reflux disorder. So let's start with the video. So as the name suggests, gastroesophageal. Okay, gastro means stomach and esophageal is esophagus and reflux is backflow of something. Okay, so in gastroesophageal reflux, there is backflow of the stomach content into the esophagus which lead to various kind of symptoms and complications. Okay, and the main reason behind this backflow is loss of competence of lower esophageal sphincter. And the competence of LOS can be affected by obesity, smoking, excessive eating. And this is the reason the incidence of GERD is very high in smokers, because smoking affect the competency of lower esophageal sphincter. Then sliding hernia is also associated with GERD. Okay, as a result of reflux of gastric acid, extensive inflammation of lower esophagus occur, which result in various form of esophagitis. Let's look at this diagram first. In diagram number 1, you can see that the lower esophageal sphincter is functioning properly, due to which the gastric content is not regurgitating into esophagus. ठीक, यानी ये कौन सी condition है? ये normal condition है. But in diagram number 2, the competency of lower esophageal sphincter is lost and it is not able to retain the gastric content into the stomach and it is regurgitating into esophagus. Okay, due to which it will lead to esophagitis and various other symptoms of GERD. Okay, then what are the factors which precipitate GERD? तो एक तो हमने पढ़ ही लिया है कि due to defective lower esophageal sphincter, and the second is inadequate abdominal length या short length of esophagus. Okay, and even hiatal hernia also precipitate GERD. ठीक, अब ये कैसे करता है उसके लिए हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ हिस के बारे में. ठीक, तो एंगल ऑफ हिस is the angle between esophagus and between the stomach, and it is always acute. It is always acute between 50 to 60 degree. Okay, and due to this acute angle, the gastric content will not be able to reach into the esophagus. ठीक, और अगर कोई भी reasons की वजह से ये जो angle है वो obtuse हो जाता है, तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रुक नहीं पाता है इनटू द स्टमक और आसानी से पहुंच जाता है इनटू द ईसोफेगस. ठीक, तो दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये एंगल है वो ऑब्ट्यूस हो जाता है. तो फर्स्ट वन इज द शॉर्ट एब्डोमिनल लेंथ ऑफ ईसोफेगस, जिसमें क्या होता है, शॉर्ट लेंथ होने की वजह से ईसोफेगस जो कार्डिया है वो थोड़ा सा ड्रॉन हो जाता है ऊपर की तरफ. ठीक, एंड द एंगल जो था बिटवीन दिस यानी एंगल ऑफ हिस जो था वो ऑब्ट्यूस हो जाता है. एंड इवन इन स्लाइडिंग हर्निया विच इज अ टाइप ऑफ हियाटल हर्निया, कुछ पार्ट होता है स्टमक का वो हर्निएट करता है थ्रू द डायफ्राम, यानी वो कुछ पार्ट है स्टमक का वो कहाँ जा रहा है, इनटू द थोरेसिक कैविटी थ्रू द डायफ्राम. ठीक, उसकी वजह से क्या हो गया, जो एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा हो गया, वो ऑब्ट्यूस हो गया. ठीक, अब इन दोनों ही कंडीशन में ऑब्ट्यूस एंगल होने के कारण जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बहुत आसानी से ईसोफेगस में पहुंच जाता है एंड इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन, ईसोफेजाइटिस एंड GERD. ओके, नाउ इनइफेक्टिव ईसोफेजियल पंप कैन ऑल्सो लीड टू GERD. ठीक, क्योंकि अगर जो ईसोफेगस है वो अपना कंटेंट जल्दी से नहीं डालेगा स्टमक में तो काफी देर तक खुला रहता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से जो एसिड है वो पहुंच जाता है इनटू द esophagus and can cause esophagitis. Okay, and this is influenced by following factors like gravity, esophageal motility and even salivation. ठीक, क्योंकि जो सलाइवा होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ एसिड जो इसोफेगस में आ जाता है. ठीक, बट किसी भी कारण अगर सलाइवा कम हो रहा है लाइक आफ्टर रेडियोथेरेपी, तो उस कंडीशन में जो एक्सेस ऑफ एसिड जो इसोफेगस में आया उसको सलाइवा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है एंड इट लीड टू इसोफेजाइटिस एंड GERD. ओके, देन इंक्रीज गैस्ट्रिक प्रेशर. ठीक, तो कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से जो स्टमक है उसका गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ रहा है, लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस या गैस्ट्रोपेरेसिस, इन सभी कंडीशन में जो स्टमक है वो अपना कंटेंट ड्यूडेनम में नहीं डाल पाता है और स्टमक के अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से बैकफ्लो हो जाता है ऑफ द कंटेंट इनटू द ईसोफेगस. ठीक, देन वी हैव द इटियोपैथोजेनेसिस बिहाइंड GERD. ठीक, तो एसिड रिफ्लक्स के कारण लोअर ईसोफेगस की हो जाती है इन्फ्लामेशन. ठीक, इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ हमें वहां पे अल्सर्स भी देखने को मिल जाते हैं. ठीक, और
इस इन्फ्लामेशन के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल मसल थी ईसोफेगस की वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक, स्पाज्म हो जाता है उसके अंदर और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से जो कार्डिया था स्टमक का वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक, यानी कार्डिया जो है वो ऊपर की तरफ गया और ईसोफेगस हो गया शॉर्ट, यानी जो एंगल ऑफ हिस हुआ वो वापस से यहाँ पे कैसा हो गया, ऑप्ट्यूस हो गया। और अब हमने पढ़ाई है, अगर एंगल ऑफ हिस जो है वो ऑप्ट्यूस होगा तो इट विल लीड टू रिफ्लक्स, ओके, ठीक, तो वापस से यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लक्स होगा एंड रिगर्जिटेशन होगा, ठीक, जिसके कारण वापस से इन्फ्लामेशन होगी एंड इट कैन लीड टू फाइब्रोसिस ऑल्सो, एंड ड्यू टू फाइब्रोसिस देयर विल बी परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द ईसोफेगस, ठीक। तो एक तरह से एक साइकिल सी बन जाती है यहाँ पे, पहले ईसोफेजाइटिस हुआ, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल का स्पाज्म हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ ईसोफेगस का, ठीक, जिसकी वजह से एंगल ऑफ हिस बढ़ गया और एंगल ऑफ हिस की बढ़ने की वजह से वापस से रिफ्लक्स ज्यादा हुआ एंड अगेन इट विल कॉज ईसोफेजाइटिस, ठीक। Then what are the conditions that can increase the risk of GERD? ठीक, तो any condition in which there is rise in the intra-abdominal pressure like obesity and pregnancy, ठीक, इन कंडीशन में GERD के होने के चांस बढ़ जाते हैं। और हियाटल हर्निया में तो हमने पढ़ ही लिया है क्योंकि उसमें एंगल ऑफ हिस जो था वो इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण GERD होता है, ठीक। नाउ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर सच एज स्क्लेरोडर्मा, इन स्क्लेरोडर्मा देयर इज थिकनिंग ऑफ द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी इसकी हो जाती है थिकनिंग, जिसकी वजह से ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है, ना ही कांटेक्ट कर पाता है अच्छे से, ना ही रिलैक्स कर पाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो आसानी से हो जाता है एंड इट लीड टू ईसोफेजाइटिस, ठीक। देन डिलेड स्टमक एम्प्टिंग विच इज कॉजिंग इंक्रीज्ड इन गैस्ट्रिक प्रेशर, ठीक, और इसके कारण वापस से बैक फ्लो होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Then factors that aggravate acid reflux, they can be smoking, eating large meals or eating late at night, eating certain foods like fried and fatty food, drinking certain beverages such as alcohol or coffee or even tea, ठीक, and taking certain medications such as aspirin, okay. Then we have symptoms of GERD, जिसमें जो most common symptom होता है it is the heartburn, ठीक, heartburn is also known as pyrosis, okay. But this heartburn will be confined to epigastrium and retrosternal area and it will not radiate to the back. और किस नेचर का होगा, the pain will be burning in nature, ठीक, और जो भी symptoms होते हैं GERD के वो worse हो जाते हैं by lying down and better by sitting position and also better by taking antacid, okay. Now other symptoms are like due to inflammation there will be dysphagia, okay, due to reflux there will be regurgitation and heartburn, ठीक, देयर विल बी अर्ली सैटिटी, बेल्चिंग, नोजिया, ब्लॉटिंग, ठीक, और अगर ये गैस्ट्रिक कंटेंट लैरिंग्स में पहुंच गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गया, देन इट कैन लीड टू एस्थमा, वीजिंग, एस्पायरेशन, कफ, डिस्निया, ब्रोंकाइटिस, हॉर्सनेस ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यू टू डैमेज टू वोकल कॉर्ड, ठीक, and it can lead to water brash and globus and hoarseness and even cardiac pain. It can also lead to anemia and hematomesis, okay. Then complications like esophageal stricture due to inflammation, due to बार बार inflammation होने के कारण there can be fibrosis and due to fibrosis there will be esophageal stricture and there can also be esophageal ulcer, ठीक, and due to inflammation there can be metaplasia of the lining of the esophagus and it can lead to Barrett's esophagus which is a precancerous condition, okay. Then investigation, we can do barium swallow, but this barium swallow will be done in Trendelenburg position, ठीक, Trendelenburg position यानी head down position में, ठीक, like this. If this is the head and this is the trunk and this is the leg, ठीक, और ये esophagus और ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया stomach, ओके। तो इसमें ये देखा गया है कि अगर कोई पर्सन GERD से सफर कर रहा है और हम उसमें बेरियम स्वेलो करते हैं, ठीक, तो उसको ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में लाने पे स्टमक से रिवर्स फ्लो होता है बेरियम का इनटू द इसोफेगस। इट मींस कि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी जो पर्सन है वो सफर कर रहा है किससे, GERD से, ठीक। वी कैन ऑल्सो डू इसोफेगोस्कोपी विच में रिवील रेड एंग्री लुकिंग म्यूकोजा इन द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, ठीक। इवन वी कैन इवन डू इसोफेजियल मैनोमेट्री
टू डिटेक्ट एनी मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक। लेकिन जो मेन है यहाँ पे या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो होता है 24 आवर pH मॉनिटरिंग, ठीक। और क्वेश्चन भी जो है वो इसी पे आएगा, ओके। Then management like lifestyle modification, we can avoid eating spicy food, fatty, fried food. Okay, we can avoid drinking tea, coffee, caffeine, alcohol. Okay, we can avoid being obese. ठीक. And drugs like antacid and proton pump inhibitor and mucosa protecting agents like bismuth and endotherapy. ठीक. In endotherapy, Antrix injection और Antrix implant दिए जाते हैं which causes मसल बल्जिंग, ठीक। मसल बल्जिंग किसकी कॉज करते हैं? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कॉम्पिटेंट होता है और प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। एंड वी कैन ऑल्सो डू एंडोस्कोपिक सूचरिंग, ओके। देन सर्जरी, जिसमें एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है निसिन टोटल फंडोप्लाइकेशन, ओके। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? पार्शियल फंडोप्लाइकेशन कर सकते हैं, बेल्सी मार्क 4 ऑपरेशन कर सकते हैं, हिल्स रिपेयर एंड रॉक्सन वाई ऑपरेशन, ओके। तो इसमें हमारी एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज निसिन फंडोप्लाइकेशन। इसमें क्या करते हैं? जो फंडस होता है उसको 360 डिग्री घुमाते हैं ईसोफेगस के अराउंड और आगे उसको एंटीरियरली सूचर कर देते हैं, ठीक, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, ठीक। तो जब भी स्टमक जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके साथ जो ये हमने रैप बनाया है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। और एक तरह से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को कंपनी देता है ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो स्टमक में ना जा पाए, ठीक। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब।